I'm back with the new topic. So before going to our new topic, all of you हैप्पी दिवाली। अभी अभी हम दिवाली से फ्री होके चुके हैं और अब आगे आने वाले समय में हम न्यू ईयर और क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल एंड नवंबर का महीना चल रहा है और हल्की हल्की कोजी कोजी ठंड का मौसम शुरू हो चुका है सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. In our last video, we talked about social media and its impact on kids and teens. So, this is Pratiksha Maheshwari inviting you to talk about our next topic OCD. OCD means obsession compulsion disorder. People with OCD are usually aware that their obsession and compulsions are irrational and excessive, yet feel unable to control or resist them. It is a multi effect disorder. So, basically, first of all, we have to understand what is obsession compulsion disorder. So, obsession it is a long lasting disorder in which a person experiences uncontrollable and recurring thoughts. That is called obsession. Second thing, engages in repetitive behavior. That is called compulsions. So, long lasting behavior, uncontrollable thoughts, and repetitive behavior that can create OCD. That will create an OCD. What is the symptoms of the OCD? So first we have to understand कि किस तरीके के symptoms हमें लोगों में देखने को मिलते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि intuitive thoughts और fear. That is the main thing. Uncontrollable thoughts and self doubting whether self or on others. Some habits which you are trying to do repeatedly, like washing hands, checking things, and this is something looking like dramatical. Both OCD and anxiety are characterized by unwanted thoughts. However, in OCD, these unwanted thoughts lead to unwanted actions as well. That is OCD. But in anxiety, you will not turn your thoughts into action. So, the basic difference is if you have OCD, you have some intuitive thought. Because of that, you will do some action, and by that, we come to know that you have the OCD. The key distinction between OCD versus anxiety was that people with OCD experiences repetitive thoughts, mental images, urges, sensations that cause intense nervousness. It doesn't stop there, though beyond that, they engage in repetitive behavior to try to distract their mind from these intrusive thoughts or disruptive thoughts. For example, someone with OCD might be very afraid of come to contract in that diseased person or infection to try and try to cope up from that situation. He might be he or she might use wash hand hundreds of times a day, or they may go out of their way to avoid contact with others. So if someone has anxiety, they um, they may show some actions but not the repetitive thought um, is there. So that is anxiety. But um, you generally won't feel the need to wash their hands.
more than normal to ensure proper hygiene in the anxiety. So basically, the key difference between anxiety and OCD is the behavior, means compulsion we see in OCD. जो behavior है, compulsion है, वो हमें सिर्फ OCD में मिलता है, anxiety में नहीं मिलता. The mental or physical acts someone adapts to try and chase away their repetitive, undesired thoughts are a significant and main identifier in OCD. तो अगर हम बात करें कि एक आदमी जो सोच रहा है कि उसको पता लगा कि एल्बो लेफ्ट टच करने से माइट बी कुछ अच्छा होगा उसके साथ, समथिंग लाइक दैट. सो they or he or she will do it once and then additional times, often thinking they haven't done it yet. उन्होंने अभी तक नहीं किया है. बार बार उनके दिमाग में आएगा, अरे यार एक बार कर ले, क्या मैंने अभी किया नहीं है यार, मैं कर लेता हूँ, कर लेती हूँ. और that once wasn't enough. और या फिर वो सोचेंगे यार एक बार करना अच्छा नहीं है, और कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा. तो बट वो चीज वो बार बार करें. So that thing is called OCD. We don't know for sure that causes OCD, but what causes the OCD? OCD um, um, OCD के कारणों के बारे में आज भी प्रॉपर नहीं पता चला है, बट फैमिली हिस्ट्री, आपका साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, एनवायरमेंटल बैकग्राउंड और आपका बॉडी वर्क्स, ये सब इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं OCD को जज करने में. पर्सनालिटी ट्रेट्स, लाइक अगर कोई चाहता है कि भाई मैं परफेक्शनिस्ट हो जाऊं, तो उनमें भी OCD के कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स एंड साइकोलॉजिकल ट्यूमा, ये भी ट्रॉमा, वो भी जो है एक अच्छा रोल प्ले करते हैं OCD को आने के लिए. लेकिन अभी हम बात करेंगे कि हम इन जनरल अगर कोई दिन में 3-4 बार सफाई कर लेता है, तो क्या वो OCD है? ये ज़रूरी नहीं है. उसके साथ आपके जो इंट्यूसिव थॉट्स है, वो आप जो होने ज़रूरी है OCD के लिए. तो अगर आप उस किसी इंट्यूसिव थॉट के कारण आप वो एक्टिविटी कर रहे हो बार बार, देन इट इज OCD. और अगर आप इन जनरल कर रहे हो तो वहां वो रिकरिंग थॉट्स नहीं होंगे आपके पास. क्लियर? सो दोस्तों, अपने आसपास के माहौल में अगर मैं बात करूं तो 10 में से 9 लोग OCD के छोटे मोटे चीज़ों से परेशान दिखेंगे आपको अपने आसपास. लेकिन अगर सीवियर और ट्रू OCD की बात करूं तो 5 से 6 लोगों में आपको ट्रू OCD भी दिखेगा. तो लोगों को जज मत करिए, ये कोई ऐसी बड़ी मेंटल स्टेज नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ ट्रू OCD है, ये बढ़ते बढ़ते एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारी चीज़ें अपने साथ ले आता है. और जो आपके इंट्यूटिव थॉट्स हैं, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगते हैं, एक सीवियर लेवल पे आपको ले जाते हैं. सो बेसिकली जो थॉट्स हैं, उनके कारण आप एक एक्शन करते हैं, जो वो थॉट्स आपको प्रेरित करते हैं उस एक्शन को करने के लिए. और जब वो आप एक एक्शन करते हैं तो आपका मन करता है कि वो रिपीटेड थॉट्स या तो आपको आते रहेंगे, या वो किसी ना किसी वजह से आप बार बार रिपीट करेंगे. तो वो जो रिपीटेशन है वही OCD है. OCD ऑब्सेशन, सबसे पहला चीज है ऑब्सेशन, दूसरा है कंपल्शन, और ये एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है. सो इट इज अ डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर. मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ
कि लॉन्ग लास्टिंग डिसऑर्डर है ये विच अ पर्सन एक्सपीरियंसेस uncontrollable and recurring thoughts that is known as obsession engages in repetitive behavior which engages them in a repetitive behavior that is called compulsion. Obsessive compulsion disorder is a long lasting disorder. हम इसको दूर करने के लिए सबसे पहले लोगों के थॉट्स पे ही वर्क करना पड़ेगा जो उन और ये किन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है हमारी साइकोलॉजी हमारा परवरिश हमारा एनवायरनमेंट हमारी फैमिली हिस्ट्री ये सब चीज़ें हमारी डिपेंड करती हैं ओसीडी को बढ़ावा देने के लिए और घटाने के लिए तो सबसे पहले हमें वो इंट्रूसिव जो थॉट्स है उसको फिनिश करना होगा या उसको बदलना होगा एंड आफ्टर दैट ओसीडी के लिए वर्क ऑन होगा आप कम कर सकते हैं ओसीडी बट खत्म करना थोड़ा मुश्किल होता है इसके साथ आपको एंजाइटी होती है और फियर भी इसका एक एग्जाम्पल है कि आपको किसी चीज़ से डर लगेगा जैसे स्पाइडर हो गई स्पाइडर से डर लगेगा तो आपके अंदर एक बार बार थॉट आएगा यहाँ स्पाइडर आ गई यहाँ स्पाइडर है तो आप सफाई करोगे या कुछ ऐसा करोगे या आपको ऊंचाई से डर लगता है या आपको कुछ इमेजेस मेंटल इमेजेस आपको दिखेंगे या रिपीटेड थॉट्स होंगे तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इसका एक एग्जाम्पल है नर्वसनेस फील होने लगेगी आपको तो धीमे धीमे आप नेगेटिविटी की तरफ जाते जाओगे तो कोशिश करें कि अपने आसपास के लोगों में अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम दिख रहा है तो आप उनकी मदद करें और उनको उनकी इन चीज़ों से बाहर आने में मदद करें सो अभी अगर मैं बात करूं तो अगर इससे रिलेटेड ओसीडी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है या आपके मन में कोई भी और जिज्ञासा पैदा हुई है ओसीडी के रिगार्डिंग तो आप अपना क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड वी विल ट्राई टू get back with the answer as soon as possible. So, आज के लिए इतना ही. We will come up with a new disorder and new insight in the psychology and with the new mental health conditions. So, goodbye, ciao, good night for the now and good night and follow my YouTube channel. Don't forget to subscribe it. Thank you.